Welcome to Common Mind. So we are starting with 2018 first paper, mathematics. Okay, so now from our side only 4 PYQs are left. Okay, 2018 and 19, and you just make sure that you practice all the PYQs and by yourself, not by seeing the solution. Even if you have some doubt, then think over it by your just improve your critical thinking. And if even then if you are not able to find, then please refer to the solutions. Here we are providing each and every stepwise solution of all the questions. Since your NDA examination is approaching and it is in September, barely 1 month is left for your preparation. So this is the last phase, and in this last phase everyone needs to gear up and start solving. Or if you are solving from very way back, then just focus on your weak points and try to maximize the score. Our goal in the paper is to maximize the score and not to show our competency, and means not to show our strength to complete all the full questions. You have to do maximum number of questions and to search for the questions which are of average level or somewhat below average. That means easy. Just do all those questions and you will find your roll number in the merit list. Okay, so let us begin. First question, already it's a very easy question. It says that n belongs to natural number, then this whole expression is divisible by which one of the following? Now if n belongs to natural number, just in all these cases just put n is equal to 1, starting from 1. You will get the answer. 121 minus 25 plus 1900. Here it is 1, then it will be plus 4. Here you will get 6, here you will get 9, 6 plus 4 plus 1900. Okay, so here you will get as 2000. Now this 2000 is divisible by which one of the following? Obviously it is not divisible by 1904, not divisible by 2002, not divisible by 2006. The only option left is option number B, because it is divisible by itself as well. Okay, so here just by putting n is equal to 1 you will get the answer. Next question, a very easy question. Here you can write it as log 2 to the base n plus log 3 to the base n plus and so on till log 2017 to the base n. Okay, now just add all these with the bases remaining the same. You will get 2 into 3 into 4 into 5 and so on till 2017. Now this is what it makes 2017 factorial, right? Starting from product of 1 till that number. So you will get log to the base n 2017 factorial. Okay, here also it is given the value of n is like this, so it can be written as log 2017 factorial upon log to the log n. That means log 2017 factorial upon log 2017 factorial cancels out, it gives 1 as the answer. Next question, in the expansion of 1 plus x to the power 43, if the coefficients of 2r plus 1th term and r plus 2th terms are equal, then what is the value of r? Now very obvious question. If the term is 2r plus 1th, if that means t 2r plus 1th term, that means it wants to say that 43c2r is our binomial coefficient, and here it will be x to the power 2r. This coefficient is equal to the coefficient of t r plus 2th term, or it can be written as tr plus 1 plus 1th term. That means taking this, we are getting 43c r plus 1 x to the power r plus 1. Now it says that this coefficient, this one and this one, they are equal. Okay, they are equal, so 43c2r can be written as 43c r plus 1. Now in this scenario we have two cases. Here it can be, मतलब अगर हम इसको देखें तो हमको ऐसा पता चल रहा है कि ये लिखा हुआ है NCA is equal to NCB. तो इसमें दो केस बन सकते हैं. या तो आप बोलो कि A की वैल्यू B है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि A प्लस B की वैल्यू n है. यदि हम A इक्वल टू B वाले पे चलें, इस पहले वाले पे चलें, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2r की वैल्यू r प्लस 1 है, तो r की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, है ना.
आर की वैल्यू 1 आएगी और ए प्लस बी की वैल्यू यदि n है तो 3r प्लस 1 की वैल्यू 43 है, 3r की वैल्यू यहाँ से 42 है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, r की वैल्यू हो जाएगी 14। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो कह रहा है कि -1 माइनस आयोटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कैसे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट इसका जो थीटा होता है मेरे पास वो लिखते हैं -पाई प्लस tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट यानी कि -1 अपॉन रियल पार्ट यानी कि -1, यानी कि -पाई प्लस पाई/4 यानी कि -3 पाई/4। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स एंड जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स। अब नॉन रियल रूट्स मतलब जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा की वैल्यू हमको 0 दी हुई, तो यहाँ से हम रूट्स निकालते हैं जो कि जेड में आएंगे, वो आएंगे आपके माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर -4 बीटा अपॉन 2 ये आएंगे। अब हमसे एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब देखिए चूंकि यहाँ पे इसने बोल दिया कि नॉन रियल रूट्स है, नॉन रियल रूट्स होने का मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स यहाँ पे जो बने हैं वो बेसिकली ऐसे ही बनेंगे, ये बना मेरे पास, ये बना। अब देखिए अल्फा स्क्वायर -4 बीटा जो ये वाला जो पार्ट है माइनस अल्फा ये तो हो गया। अब चूंकि कह रहा है कि नॉन रियल रूट्स बनेंगे यानी कि ये हमारा जो है ये पूरा जो है, या फिर आप कह दो कि ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ है ये बेसिकली लेस देन 0 है, या फिर आप कहो कि ये पूरा जो पार्ट मेरा वही मेरा इमेजिनरी पार्ट बनेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन रियल नहीं आ रहा है, जाहिर बात है कॉम्प्लेक्स अगर, तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट बनेगा। अब ये बनने के लिए मुझे अल्फा स्क्वायर -4 बीटा को लेस देन 0 करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर -4 बीटा को मुझे लेस देन 0 करना पड़ेगा, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है जो उसके अंदर लिखा होता है ना। या तो आप डायरेक्टली यहीं से निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर चूंकि हमको पहले से दे रखा है कि नॉन रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात एक ही होती है। ये यहाँ से आया, अब मुझे चाहिए अल्फा की वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू 1 है। यदि रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू 1 है तो ये आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है आपका रियल पार्ट है, ये आपका जो है रियल पार्ट है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1, तो यानी कि -α/2 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू मुझे -2 दे रखी है। ठीक है, अब ये इसी अल्फा की वैल्यू -2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा आएगा 4 -4 बीटा की वैल्यू लेस देन 0, ये आपका ऐसा कुछ आएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, लेट ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। अब देखिए सीधी सी बात है, वही हमको जब भी ऐसे सवाल आया करे सीधे सीधे आपको ये डायग्राम बना लेना है, वेन डायग्राम जिसको कहते हैं, है ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, अगर इसको मैं ए मानूँ इसको बी मानूँ तो ए इंटरसेक्शन बी बार को छोड़ के बाकी जितना ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि इतना पोर्शन, ये जो ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है ये वाला, है ना, ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ये। और दूसरा हमसे कह रहा है क्या, दूसरा हमसे कह रहा है कि ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए को छोड़ के जितना बी का पार्ट है वो, यानी कि ये वाला जितना पार्ट है ये। अब हमसे इन्हीं दोनों को कंबाइन करके इन दोनों का यूनियन ले लिया है, तो यही बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे इसने क्या किया कि इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे इसने इसको सी बना दिया, वेयर ए डैश एंड बी डैश आर कॉम्प्लीमेंट्स इन एक्स, व्हाट इज सी इक्वल टू। अब सी क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे मुझे सीधे से दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए यूनियन बी ये सारा हो जाएगा, उसमें से हमने सिर्फ ये वाला ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, हमने उसमें से ये बाहर कर दिया, ठीक है ना। बस सीधे सीधे हमारा ये आंसर आ जाएगा, सब में से हमने बस ये इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, How many numbers between 100 and 1000 can be found with the digits 5, 6, 7, 8, 9 if the repetition of digits is not allowed? Repetition of digits allowed नहीं है और 5, 6, 7, 8, 9 से हमें digits फॉर्म करने हैं।
बिटवीन 100 एंड 1000। कहने का मतलब है कि हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए यहाँ पे इन पांचों में से पहले स्थान पे इस वाले प्लेस पे कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं, कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं। बचे हुए अब रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो हमने अगर एक नंबर ले लिया तो बचे हुए फिर यहाँ पे 4 नंबर हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम 3 नंबर लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 60। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए ये हमको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो मॉड्यूलस दिया हुआ है, इसका मतलब हमको दिया है अंडर रूट 1 + 2 स्क्वायर होल टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर x। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर x, यानी कि 5 टू द पावर x/2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5x। अब देखिए एक साथ तो ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं कि भैया x/2 के बराबर x हो जाए, है ना। यहाँ से कोई वैल्यू निकलने वाली तो है नहीं। आप इसको यहाँ ले आओगे, फिर आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, यहाँ से तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है जो x की वैल्यू 0 आ रही है ना। सिर्फ यहाँ से एक पॉसिबल वैल्यू आ रही है जो कि 0 आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यानी कि इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ 0 ही मिल रहा है। तो ये तो जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मेरे पास एक भी नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है ना। हमसे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ AM to GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B इज 5:3। बहुत ही सिंपल सवाल है। A + B/2 अपॉन रूट AB, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 5/3। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है प्रोसीड कर रहा है, वैसे वैसे आप क्वेश्चन को पढ़ के आगे प्रोसीड करिए। तो आपके पास हो जाएगा A + B/2 इंटू रूट AB की वैल्यू 5/3 दी हुई है। इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, विल गेट A² + B² + 2AB अपॉन 4AB इज इक्वल टू 25/9। तो यहाँ से आपके पास आएगा 9A² + 9B² + 18AB इज इक्वल टू 100AB, ये आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9A² + 9B², फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -82AB इक्वल टू 0, यानी कि 9A² - 82AB + 9B² की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। उसके बाद देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 9A² - 81AB - AB + 9B² इक्वल टू 0। 9A यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा A - 9B, A - 9B यहाँ से -B कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा A - 9B इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको A/B की दो वैल्यूज़ में A/B की जो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से एक वैल्यू हमको मिल रहा है क्या कि 9A की वैल्यू B है और दूसरा है A की वैल्यू 9B है। A/B का रेशियो पूछा तो A/B की वैल्यू 9:1 भी आ सकती है और A/B की वैल्यू 1:9 भी आ सकती है। ऑप्शन में हमको दे रखा है 9:1, तो हम वही लगा देंगे। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। If the coefficients of a to the power m and a to the power n in the expansion of 1 + a to the power m + n are alpha and beta, then which one of the following is correct? बहुत ही सिंपल सवाल है। हमसे पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ a to the power m, अगर मुझे a to the power m यहाँ पे चाहिए, सपोज यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा m + n c to the power m, तभी तो आएगा a to the power m। अब कह रहा है कि ये कोएफिशिएंट जो है, यानी कि a to the power m का जो कोएफिशिएंट है वो a to the power n के कोएफिशिएंट से बराबर है, यानी कि यहाँ पे m + n c n आना चाहिए, तभी आएगा a to the power n। अब ये जो दो मैंने सर्कल किए हैं ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं मतलब बराबर तो नहीं है, तो कह सकते कि ये, चलो ये हमने बोल दिया कि अल्फा है और ये बीटा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो एक m + n c m दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है m + n c n। अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बाइनोमियल थ्योरम में, तो एक प्रॉपर्टी होती है NCR की वैल्यू होती है NCn - r, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि m + n c m को मैं लिख सकता हूँ m + n c m + n - m, यहाँ से कैंसिल आउट हो तो मेरे पास आ गया m + n c n। m + n c n है जो कि मुझे पहले यहाँ से अल्फ़ा दे रखा था, मैंने कैसे कैसे करके इसको ये लाया और वही सेम वैल्यू यहाँ पे इसकी बीटा दी हुई है, यहाँ पे अल्फ़ा था तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट 11th, इफ़ x + log 15, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं देखिए यहाँ पे सब बेस में जो log 15 है ना, सबके बेसिस में log 15 है, तो मुझे भी इसको 15 ऐसे लाना पड़ेगा ताकि ये फिर में आ जाए। तो इसको लाने का सिर्फ एक तरीका है, आप इसको ऐसे लिख दो 15 to the power x, ऐसे लिख देंगे तब मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे आपका LHS में ये आ जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हो LHS वाला log to the base 15 to the power x into 1 + 3 to the power x इक्वल टू
यहाँ पे आपके पास आएगा log 15 5 to the power x प्लस log 12 to the base 15 ये आएगा। तो यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log 15 to the power x into 1 plus 3 to the power x equal to log 5 to the power x into 12 to the base 15। अब यहाँ पे दोनों बेस 15 बराबर हैं, जो दोनों बराबर हैं तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो मेरे पास आएगा 5x, ये 15 टू द पावर x को मैं लिख सकता हूँ 5x इंटू 3 टू द पावर x, 5 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर x इंटू 12। 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर x को मैं t ले लेता हूँ तो बनेगा t, है ना। मैं क्या करता हूँ 3 टू द पावर x को t ले लेता हूँ तो बनेगा t इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 12, यानी कि t स्क्वायर प्लस t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगी, या तो -4 आएगी या तो 3 आएगी, है ना। लेकिन हमको पता है कि 3 टू द पावर x जिसको मैंने t लिया है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो हमको ये वाली वैल्यूज लेंगे, यानी कि 3 टू द पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस। अगर 10 से डिविजिबल होना तो जाहिर सी बात है लास्ट वाले डिजिट में लास्ट वाला डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये बेसिकली ये आपका 0 होगा, तो ये तो फिक्स है, ये आपका फिक्स्ड है। हमसे कह रहे हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपके टोटल 4 केसेस आ सकते हैं, यहाँ पे 3 केसेस आ सकते हैं और यहाँ पे 2 केसेस आ सकते हैं, बस हो गया। यहाँ पे कोई भी 4 नंबर रख देंगे, यहाँ पे कोई भी 3 नंबर रख देंगे, यहाँ पे कोई भी 2। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कि आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए वेन डायग्राम का सवाल है, इतना लंबा सवाल वेन डायग्राम का ही होता है। इन अ क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली। हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम हम सभी को पता है कैसे बनाना होता है। देखिएगा यहाँ बनाते हैं। ये और ये बना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, अगर मैं इसको हिंदी बोलता हूँ इस वाले गोले को, तो मैं इसको मैथ बोल देता हूँ और इसको मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, ठीक है। 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली, हिंदी ओनली है ना, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इतना, ये वाला पोर्शन जो है ये इसको बोल रहा है 54। दूसरा कह रहे हैं कि 63 आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली, 63 आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये ओनली वर्ड का बहुत यहाँ महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स में, ना कि और किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में यहाँ पे इनका 63 है। एंड 41 स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश ओनली, तो यानी कि ये वाला पोर्शन। "41 स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश ओनली", तो यहाँ पे हो जाएगा 41। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि 18 देयर आर 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, 18 स्टूडेंट्स। तो 18 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इसको मैं किस कलर से दिखा देता हूँ, चलो इस कलर से दिखा देता हूँ। ये हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों में, हिंदी एंड मैथमेटिक्स दोनों, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा हिंदी। और हमसे कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये बेसिकली है आपका 10, इतने लोग हैं जो कि तीनों में बेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों में बेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि 18 स्टूडेंट्स में से हमने यहाँ पे 10 गिन लिए हैं, तो पहले से हिंदी और मैथमेटिक्स में ये वाला जो पूरा सर्कल आ रहा है उनमें से पूरे 18 हैं। अब 18 में से 10 हमने इसमें गिन लिए, तो बचे हुए जो 8 हैं वो इसमें जाएंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में वीक हैं, मतलब इंग्लिश में दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश। सो
अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इंग्लिश वाला जितना भी है उन सबको छोड़ दीजिए। ये पूरा सर्कल ही अगर आप इस पूरे सर्कल को यहाँ से बाहर निकाल दोगे, ये ना इंग्लिश वाला जो सर्कल है ये पूरा इसको बाहर खींच दो बस ऐसा, तो बचेगा क्या मेरे पास 54, 8 और 63, इन सबको ऐड कर दो। 54 प्लस 8 कितना होगा 62, 62 और 63 को ऐड करोगे तो आएगा 125। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What is the number of students who are good in Hindi and mathematics but not in English? Hindi and mathematics, ये तो और भी सरल हो गया। They are good in Hindi and English but not mathematics, sorry, they are good in Hindi and mathematics। तो हिंदी और मैथमेटिक्स में तो गुड सिर्फ यही 8 वाले ही हैं, तो सीधे से डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है जो कि इंग्लिश में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू 1। देखिए अब हमको दे रखा है मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि मॉड ऑफ अल्फा का जो होल स्क्वायर है उसकी भी वैल्यू 1 दी होगी, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। और हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये आता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी देखी होगी आप सभी ने। तो यहाँ से होता है कि जेड इंटू जेड बार जो आया है मेरा, या फिर अल्फा इंटू अल्फा बार बोल दें, तो आया है आपका मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा बार की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। अब देखिए ये वाला जो 1 है ना, इस 1 को आप रिप्लेस कर दो उसी से, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन मॉड ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा। अल्फा यहाँ से यदि कॉमन लेंगे तो बनेगा अल्फा बार माइनस बीटा बार। अब चूंकि बार इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो बार को हम एक्सपेंड करके इन दोनों पे ले आते हैं, है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, सबको पता होता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल बार, ये आएगा। अब चाहे आप अल्फा माइनस बीटा का होल बार लो, चाहे उसके कॉन्जुगेट का होल बार लो, दोनों एक ही आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर बनेगा कुछ नहीं, तो आपके पास बनेगा सिर्फ 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 16, द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 हैज़। देखिए इस वाले क्वेश्चन में मॉड का इस्तेमाल आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 वाले केस के लिए, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 वाले केस के लिए ये कैसे खुलेगा, ये वैसे खुलेगा जैसे ये है, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से वैल्यूज़ क्या क्या निकल रही है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2, ये आएगा 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 हैज़, द इक्वेशन हैज़ अ रैशनल रूट एंड एन इरेशनल रूट। अब देखिए पहली बात कि x लेस देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 या तो 1 से कम। तो मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रहा कि 1 प्लस रूट 17 अपॉन 2 1 से कम हो सकता है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो इस वाले केस में सिर्फ मेरे पास एक ही रूट आएगा, जो कि आएगा 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2। एक रूट मेरे पास ये आया कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, उस वाले केस में ये जो है ये x माइनस 1 की तरह खुलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे दो रूट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है माइनस 3, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ है, तो मेरे को x इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। तो एक रूट मेरे पास आ रहा है x इक्वल टू 2 और एक रूट मेरे पास आ रहा है 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2। और यहाँ पे x इक्वल टू 2 जाहिर सी बात है एक रैशनल रूट है, और यहाँ पे चूंकि रूट 17 है और ये नॉन रेकरिंग डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, तो ये आपका एक इरेशनल रूट है। तो मेरा आंसर आ जाएगा अ रैशनल रूट एंड एन इरेशनल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी नंबर एक्सप्रेशन ऑफ द डेसिमल। बहुत ही सिंपल सवाल है,
इसको करिए, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, रिमाइंडर आएगा 1। फिर आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। फिर आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। इसको फिर से डिवाइड करिए 3 को तो आएगा रिमाइंडर 1। फिर यहाँ पे भी आएगा 1। ऊपर ऐसे जाइए, नीचे मतलब नीचे से ऊपर जाइए तो आएगा 1 1 1 1 1, और ये ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 1000। अब देखिए, जब भी कभी आपको दिखा कि आयोटा की पावर में कॉन्जिक्यूटिव 4 बार आ रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्यों? आयोटा की पावर 1000 आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 टू द पावर 250 ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास आएगा आयोटा टू द पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा। फिर यहाँ पे आएगा यही सेम चीज़, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा क्यूब, ये आएगा। तो आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है? 1, यहाँ पे लिख दो 1, प्लस यहाँ पे आएगा 1 इंटू आयोटा तो आएगा आयोटा। फिर यहाँ पे आएगा 1 इंटू आयोटा स्क्वायर तो आएगा आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब, ये आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है। तो आयोटा माइनस आयोटा कम हो गया, 1 से -1 ये अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1, अब देखिए इसको वही पहले वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log 3 टू द बेस n प्लस log 4 टू द बेस n एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे log बेस n कॉमन रहेगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन टिल 100, ये आएगा। तो यहाँ आपके पास होगा log टू द बेस n, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 100 फैक्टोरियल, ये आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन log n 100 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हमसे कह रहा है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ √3 प्लस आयोटा। आप देखिए ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है, x प्लस आयोटा बाई। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है? ये होता है आपका r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, ये आपका होता है। जहाँ पे ये आपका होता है मॉड्यूलस और ये आपका होता है एम्पलीट्यूड। ये आपका होता है मॉड्यूलस और ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से r आपका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस होता है, इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप एम्पलीट्यूड निकालोगे तो इसका जब tan थीटा निकालोगे, थीटा ऐसे निकालते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स 1 अपॉन √3, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? π/6 आएगी ना। तो π/6 आ गई, यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा? cos थीटा की वैल्यू cos π/6 कितना हो जाएगा? साइन पाई, तो यानी कि cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, r की वैल्यू 2 है तो आ जाएगा आपके पास 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपेंशन। कहने का मतलब है कि जो टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, जो टर्म्स बच रहे हैं, सीधे सीधे इसके नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछ रहा है। तो इन सभी के पता है नंबर ऑफ टर्म्स हम सभी को डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि इसका 6 आएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा तो यहाँ पे मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ। इसका एक्सपेंशन होगा 11c0 प्लस 11c1 2√3x प्लस 11c2 2√3x टू द पावर 2 प्लस 11c3 2√3x टू द पावर 3 प्लस 11c0 उसके बाद माइनस आएगा 11c1 2√3x, फिर यहाँ पे प्लस आएगा 2√3x स्क्वायर माइनस 11c3 2√3x टू होल क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। ये जितने भी ऑड वाले टर्म्स हैं ये ऐसे सब कटते चले जाएंगे, जो इवन वाले हैं वो बच जाएंगे, यानी कि 11c0 प्लस 11c2 प्लस 11c4 प्लस 11c6 11c8 एंड 11c10,
ये बचेंगे, बस इतने ही टर्म आएंगे मेरे पास। सॉरी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 टर्म्स हैं ऐसे जो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे नंबर ऑफ टर्म्स बच रहे हैं। और नॉर्मली हम ऐसे भी देख सकते थे कि यदि हम इस वाले टर्म का एक्सपेंशन करते तो 6 टर्म्स आते हैं और बाकी के 5 टर्म्स माइनस से कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the greatest integer among the following by which the number 5 to the power 5 plus 7 to the power 5 is divisible? अब देखिए ये 5 जो है वो 6 से 1 कम है और 7 जो है वो 6 से 1 ज़्यादा है, तो मैं 5 to the power 5 प्लस 7 to the power 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 6 minus 1 to the power 5 प्लस 1 प्लस 6 to the power 5, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखोगे तो आएगा 5 C0 C0 माइनस 5C1 6 प्लस 5C0 6 to the power 5 फिर 6 to the power 4 प्लस 5C2 6 to the power 3 माइनस 5C3 6 to the power 2, ऐसे करते करते जाएगा ये। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5C0 प्लस 5C1 6 प्लस 5C2 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बचेगा क्या, माइनस 5C1 वाले कट जाएंगे सारे, वही फिर से ऑड वाले टर्म जितने सारे के सारे कट जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा 2 अच्छा कटेगा नहीं, मतलब कटेगा नहीं, इसको अगर हम ऐड करके लिखें, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 5 to the power 5 प्लस 7 to the power 5, है ना, 5 to the power 5 प्लस 7 to the power 5 को ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो उसको डिवाइड कर जाएगा। तो हमको पता है कि 5 जो है 6 से 1 कम होता है और 7 जो है 6 से 1 ज़्यादा, तो इन सब केसेस में यही करते हैं क्या कि 6 minus 1 to the power 5 प्लस 6 plus 1 to the power 5 5C0 6 to the power 5 minus 5C1 6 to the power 4 plus 5C2 6 to the power 3 and so on, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में ये वाले टर्म्स लिखते हैं तो आएगा 5C0 6 to the power 5C0 6 to the power 5 plus 5 C1 6 to the power 4 plus 5C2 6 to the power 3 and so on, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कटा 6 to the power 2 6 to the power 2 से कटा और वो 0 से कटा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 6 to the power 5 प्लस 10 into 6 to the power 3 प्लस 5C4 5 into 6 प्लस बड़ा सा, यहाँ पे आपके पास आएगा 6 to the power 5, यहाँ पे भी आएगा 10 into 6 to the power 3 प्लस 5 into 6, तो वही है 2 times 6 to the power 5 प्लस 10 into 6 to the power 3 प्लस 5 into 6, ये बचेगा। अब मैं यहाँ से यदि 6 कॉमन निकाल दूँ, 6 यदि मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो आएगा 6 into 2, यहाँ पे आएगा 6 to the power 4 प्लस 10 into 6 स्क्वायर प्लस 5, ये बचेगा। अब ये जो फाइनल जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास, इसको रीवैल्यूएट करके तो वो किससे डिविजिबल हो रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से और कुछ कॉमन निकाल भी नहीं सकते क्योंकि कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो जाहिर सी बात है सिर्फ अगर यहाँ पे हम 12 रख दें तो ये इसको पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि 12 से बड़ा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। 6 भी हो सकता था लेकिन 6 स्मॉलेस्ट हो जाता। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनफाइनाइट जीपी का सवाल है, बहुत ही ये आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इनफाइनाइट जीपी का सम हम सभी को पता है क्या होता है, एस इनफाइनाइट का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म यानी कि 1 और r होता है हमारा कॉमन रेशियो। इसमें कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस y आएगा आपका जो है कॉमन रेशियो, और a आपका है 1, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x हमको दे रखा है सम ऑफ इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। देखिए कितना सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको a मानता हूँ तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखोगे, इस रो के रिस्पेक्ट में, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि सीधे सीधे हमको बस निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले मुझे इन सभी का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसको लिया प्लस, अब इसको छोड़िए, यहाँ पे प्लस ऐसे लिखते हो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से प्लस को लिखिए और फिर इसके रो, इसके कॉलम में आने वाले सारे एलिमेंट छोड़िए, इसके रो में सारे एलिमेंट छोड़िए, तो बचा ये वाला। तो प्लस साइन को लेते हुए चलेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस 0, यानी कि यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, अब ये जिस कॉलम में आ रहा है और ये जिस रो में आ रहा है उसको हटाइए, फिर जो मैट्रिक्स बचती है उसका डिटरमिनेंट निकालिए माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका 0 ही आएगा, यहाँ पे आप देख लेना 0 आएगा, यहाँ पे भी आप देखोगे 0 आएगा, यहाँ पे आप देखोगे 1 आएगा, यहाँ देखोगे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, अगर इसका रो और इसका कॉलम हटाए तो बचेगा ये वाला, है ना। तो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन के साथ क्या है बचेगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस थीटा, ये आएगा। ये आपके पास आया ए, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये तो हमने निकाला ए, लेकिन इसका फिर से ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, है ना। कोई आपका आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसको एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज ले लीजिए, क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा 0, फिर सेकंड रो बन जाएगी आपकी सेकंड कॉलम, यानी कि माइनस साइन थीटा कॉस थीटा रो 0, फिर थर्ड कॉलम बन जाएगी आपकी थर्ड रो आपकी बन जाएगी थर्ड वाली कॉलम, तो ये आएगा। तो अब क्या होगा, कॉस थीटा साइन 0 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0 0 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है ए है जो 2 इंटू 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ए बी की वैल्यू 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, देन बी मस्ट बी। ए आपका हो जाएगा 2 क्रॉस 3 और ए बी, यानी कि मल्टीप्लाई हमने किससे किया, बी से। सपोज हमने बी का जो है वो ए क्रॉस बी मान लिया, है ना। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आया ए बी, उसका ऑर्डर कितना दे रखा है मुझे, 2 क्रॉस 5। हम सभी को पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है, यानी कि ए की वैल्यू तो 3 आ गई। और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है वो बनती है इसके रो से और इसके कॉलम से, है ना। यानी कि 2 क्रॉस 5 बनेगी जो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। और हमको यहाँ पे 2 क्रॉस बी, यहाँ पे फिलहाल 2 क्रॉस बी है और ये किससे कंपेयर करना है, 2 क्रॉस 5 से, क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 5 दे रखा है। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा मेरा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 5। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा मेरा 3 क्रॉस 5। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आता है, ए की वैल्यू हमको ये दी हुई है एंड ए स्क्वायर माइनस के माइनस आई 2। भाई मैट्रिक्स का सिंपल सा सवाल है, इसको बस आपको सॉल्व करना है। ए स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 2 2 3 1 2 2 3, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2 + 6 8, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13, ये आएगा, ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर। तो ये आएगा 5 8 8 13 माइनस के 2k एंड 3k इक्वल टू I2 1 0 0 1, ये आएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आएगा 5 माइनस के, यहाँ पे आएगा 8 माइनस 2k, यहाँ पे आपके पास आएगा 8 माइनस 2k और यहाँ पे आएगा 13 माइनस 3k। अब चाहे कोई भी एलिमेंट उठा के कंपेयर कर दो, आपका आंसर जो है वो आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 4 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 रखोगे तो 1 आएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 4। क्वेश्चन नंबर 27, what is the number of triangles that can be found by choosing the vertices from a set of 12 points in a plane, 7 of them which lie on the। देखिए इसका सिंपल सा, अगर मुझे सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होता ना कि 7 of which lie on the, मतलब हमको सिर्फ दिया होता कि सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, तो मेरा आंसर 12C3 होता। लेकिन चूंकि एक प्लेन में 7 पॉइंट्स जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका हमको सब्ट्रैक्शन करना होता है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास कितना बचा, ये आपके पास बचा 220 माइनस 35, 10 में से गया 5 11 4 5 6 7 8 9 10 11 8 185। तो मेरा जो करेक्ट आंसर जो है मेरा वो मेरा 185 आना चाहिए। लेकिन
लेकिन यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है 175। अब मुझे नहीं पता कि ये किस बेसिस पे क्यों दिया गया है ना। यूपीएससी ने जो इसका आंसर है वो 175 दिया है। इसका करेक्ट आंसर मैंने अभी अभी आपके सामने निकाला है कि ये है 185। तो अगर आप देख लीजिएगा, कोई मेरी तरफ से फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये फॉर्मूला जो है इसी से निकलता है। हो सकता है यूपीएससी से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फिर आंसर की में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ये वाला है 185। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए हमको इसका सम बताना है। किसका सम बनाता है? एन सी आर प्लस 2 टाइम्स एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2, यानी कि एक निकालना है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 प्लस, ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको मैं तो अलग अलग करके लिख देता हूँ, प्लस एन सी आर माइनस 2। एक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी आर। तो देखिए एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी आर, तो इसको मैं लिख देता हूँ एन प्लस 1 सी आर प्लस। अब अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कैपिटल आर और इसको मैं फिर ये आपका क्या बन जाएगा आर माइनस 1, तो देखिए बन गया ना एन सी कैपिटल आर प्लस एन सी कैपिटल आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी कैपिटल आर। तो क्या बन जाएगा ये एन प्लस 1 सी कैपिटल आर क्या है मेरा आर माइनस 1। फिर मेरे पास अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो वही फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं इसको कैपिटल एन बोल देता हूँ, अगर मैं इसको कैपिटल एन बोल देता हूँ तो मेरे पास आएगा कैपिटल एन सी आर प्लस कैपिटल एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी आर, कैपिटल एन प्लस 1 सी आर, यानी कि एन प्लस 2 सी आर। तो एन प्लस 2 सी आर तो यही लिखा हुआ है मेरा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। बस वही एक फॉर्मूला था बेसिक वाला, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जी आई एफ ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए एक्स की इंटरवल हमको क्या क्या दी हुई है, एक्स की जो इंटरवल है हमको दे रखी है 0 से लेकर 2, यानी कि यहाँ से अगर जी आई एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो मेरे पास एक 0 आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक होगी। 1 कब आएगी? जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगी। फिर ये जब ये 2 होगी, ये आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए सबसे पहला केस हम लेते हैं ये वाला, फिर यहाँ पे प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ रहा है। x इक्वल टू 4 ले नहीं सकते क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है पहले से कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो एक रूट मेरे पास ये आया नंबर ऑफ सॉल्यूशन के तौर पे। दूसरा हमसे कह रहा है कि 1 की वैल्यू जो x हमें लेना है वो 1 से लेकर 2 तक लेना है। उस केस में जी आई एफ ऑफ एक्स को मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 रखते हैं सपोज, तो मेरे पास आएगा ये। जब मैं इसके रूट्स निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2, यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3, है ना। लेकिन हमको दे रखा है पहले से कि जो x की वैल्यू है वो 1 से लेकर 2 के लिमिट में रहनी चाहिए, 1 से लेकर जो है 2 के लिमिट में रहनी चाहिए। लेकिन 2 प्लस रूट 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा और 2 माइनस रूट 3 जो है वो 1 से कम हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए था कि वो 1 से 2 के बीच में रहता, तो इन दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे मैं 2 रख दूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, कुछ ये आएगा। तो भैया हमको बोला कि सिर्फ x इक्वल टू 2 ही होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि x इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला टर्म आ रहा है, तो ये तो गया। तो ये नहीं होगा, ना ही ये दोनों होंगे, तो बचा मेरे पास सिर्फ x इक्वल टू 0। सिर्फ यही एक ऐसा सोल्यूशन आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे मेरे पास 1, है ना। सिर्फ यही एक ऐसा सोल्यूशन आ रहा है जो कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, प्लस यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी जो ये दोनों रूट्स आए थे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ये वाला जो रूट आया वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन मेरे पास कितने हो जाएंगे, सिर्फ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A survey of 850 students in a university yields that 680 students like music. तो number of students who like music कितने हो जाएंगे, 680, and 215 like dance, तो n of dance कितने हो जाएंगे मेरे पास। What is the least number of students who like both music and dance? तो n of यानी कि हमको निकालना है कि n of m इंटरसेक्शन d की लीस्ट वैल्यू कितनी होगी।
लीस्ट। तो पहले आप एन ऑफ एम यूनियन डी निकालोगे तो आएगा एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, ये हमको चाहिए, ये वाला पार्ट। और हमको एक कंडीशन और पता होती है कि जो एन ऑफ एम यूनियन डी होता है ना, जो एन ऑफ एम यूनियन डी होता है वो या तो एन ऑफ टोटल जो पूरे यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे हैं वो उनसे या तो उनके बराबर होगा या तो उनसे कम होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी वो जो है या तो वो टोटल्स के बराबर होगा या तो वो टोटल के कम होगा, ठीक है। तो एन ऑफ एम कितना हो जाएगा 680, एन ऑफ डी कितना हो जाएगा 215 माइनस, ये हमको निकालना है तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, डेट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ टोटल। एन ऑफ टोटल मुझे कितना देखा 850, तो यहाँ पे 850 रख दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 8 माइनस क्वेश्चन मार्क मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 850, तो 895 माइनस 850 लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 45, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वो मेरा 45 या 45 से बड़ा होना चाहिए, 45 या 45 से बड़ा होना चाहिए। तो लीस्ट नंबर कितना है मेरे पास 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the sum of all 2-digit numbers which when divided by 3 leaves 2 as the remainder? तो सबसे पहला 2-digit नंबर क्या आएगा मेरे पास 11, फिर आएगा मेरे पास 14, फिर आएगा मेरे पास 17, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 98 तक जाएगा आई गेस, है ना, 98 तक जाएगा। तो इन सब का सम निकालना है। सम ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 11, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास 3, तो सम निकाल लेते हैं। पहली बात नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से देखें तो कितने हो जाएंगे 98 इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो ये जाएगा आपका 98 माइनस 11 कितना हो जाएगा 787 बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 29 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 30, n की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। n की वैल्यू आई 30, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 30 हो तो 30 बाई 2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू 3, ये आपका सम आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा 330 प्लस 15 45 इंटू 29 कितना हो जाएगा ये 45 इंटू 29 कितना होगा 5 4 40 0 9 1305, तो 1305 और 330 1635 है ना, ऑप्शन नंबर सी मेरा 1635 जो है आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं नेगेटिव इफ जीरो की जो ए की वैल्यू 0 से लेकर 1 है तो वैल्यू ऑफ लॉग ए टू द बेस टेन नेगेटिव, हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव होती है ना, जब आपका नंबर जो है वो 0 से 1 के बीच में हो और बेस आपका 1 से बड़ा हो, या फिर अगर आपका बेस 1 से बड़ा हो लेकिन मतलब अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में और नंबर आपका 1 से बड़ा हो, उस वाले केस में हमेशा नेगेटिव सेंस बनता है। हमसे कह रहा है कि जस्टिफाइड किससे कर सकते हो, अगर जस्टिफाइड की बात करनी है तो आप इसको ऐसे देखो कि मुझे ये दे रखा है सपोज ये मुझे दे रखा है x, तो मैं a को लिख सकता हूँ x टू द पावर 10, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये x टू द पावर 10 है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा, इसको मैं प्रोनाउंस करूंगा नेगेटिव पावर ऑफ 10, सॉरी एक मिनट थोड़ी गलती होगी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैं, ये नहीं होगा। a को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर x, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए वैल्यू ऑफ लॉग a टू द बेस 10 इज नेगेटिव, यानी कि जो x आ रहा है ना ये नेगेटिव है आपका, ये जो आपका है ये नेगेटिव आ रहा है ना, और ये आपका क्या है, इस पूरे को मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा, इस पूरे को मैं प्रोनाउंस करूंगा नेगेटिव पावर ऑफ 10, नेगेटिव पावर ऑफ 10, ऐसे मैं प्रोनाउंस करूंगा। अब यही नेगेटिव पावर ऑफ 10 किसके बराबर है, a के बराबर है ना, ये a के बराबर है, और a मेरा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो मेरा ऑप्शन नंबर भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दैट नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। थर्ड टर्म ऑफ जीपी 3 यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू मुझे 3, AR स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी हुई है 3, हमसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स।
यानी कि a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर टू द पावर 4 कितना दे रखा है और हमको निकालना है। एडअप करेंगे तो आएगा 4 + 3 7 + 2 9 10 ये आएगा, यानी कि ए आर स्क्वायर होल टू द पावर 5 हमको ये निकालना है। ए आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 3 दे रखी है तो 3 टू द पावर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 243 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x 3/2 z आर इन ए पी, अगर ए पी में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3/2 की वैल्यू मुझे दे रखी है x + z एंड x, 3, z आर इन जी पी, यानी कि 9 की वैल्यू मुझे दे रखी है xz। तो यहाँ से काटा, x की वैल्यू मैं 9/z रख देता हूँ, या फिर आप यहाँ से देखो तो मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 9 - z। इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा 9 - z इंटू z, सॉरी 3 - z सॉरी, यहाँ पे 3 - z आएगा, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 3z - z², तो z² - 3z + 9 = 0 ये आएगा, तो आएगा z²। अच्छा ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए डायरेक्टली मैं इसको करता हूँ, बस यहाँ तक निकालना था। यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन है 3 = x + z और 9 = xz, ये आ गया है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सपोज मान लेते हैं मेरे पास 3 नंबर्स हैं जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ना, मेरे पास ऐसे तीन नंबर्स हैं जो मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने के लिए मेरे को ये जो मेरा बीच वाला नंबर है वो होना चाहिए बेसिकली 2ac/a + c के बराबर, ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं क्या मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो 6 = 2xz/x + z, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। xz की वैल्यू 9 आ गई तो आपका हो जाएगा 18/3, तो ये तो 6 हो गया, और यहाँ पे भी 6 दिया तो 6 = 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, बहुत ही सरल सवाल है, देखिए इसको आप लिखो समेशन n = 2 से लेकर 11 iota टू द पावर n प्लस समेशन n = 2 से लेकर 11 iota टू द पावर n + 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा iota टू द पावर 2 + iota टू द पावर 3 + iota टू द पावर 4 एंड सो ऑन टिल iota टू द पावर 11, ये आया, प्लस iota टू द पावर 3 + iota टू द पावर 4 एंड सो ऑन टिल iota टू द पावर 12, ये आ गया। अब देखो आयोटा टू द पावर 2 3 4 5, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटा की पावर्स आती हैं तो कैंसिल आउट होकर हमेशा उनको 0 ही बनना है। तो 2 3 4 5 ये कैंसिल आउट होंगे, 6 7 8 9 ये कैंसिल आउट होंगे, बचेंगे सिर्फ मेरे पास क्या आयोटा टू द पावर 10 प्लस आयोटा टू द पावर 11। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n + 1 प्लस आयोटा टू द पावर n + 2 प्लस आयोटा टू द पावर n + 3, जब भी आयोटा की पावर में 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं तो उन सभी का जो सम होता है वो 0 होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी सिमिलरली यही पे आएगा आयोटा टू द पावर 3 4 5 6 0 होंगे, 7 8 9 10 वो भी 0 होंगे, बचेगा क्या मेरे पास आयोटा टू द पावर 11 प्लस आयोटा टू द पावर 12। अब ये वाला जो टर्म है ये तो आपका बन जाएगा 1 बन जाएगा, आयोटा टू द पावर 10 क्या हो जाएगा आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा टू द पावर 2, यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये मेरा क्या बन जाएगा +2 इंटू आयोटा क्यूब, और यहाँ पे ये +1। आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1, तो -1 और +1 तो गया, बचेगा 2 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो आएगा आपका -2 इंटू आयोटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई है 1/√5, तो tan x कितना हो जाएगा मेरे पास √2 या 2 + 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से tan y कितना हो जाएगा 1/3,
x प्लस वाई चाहिए, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y फॉर्मूला होता है। तो tan x प्लस वाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यूज रखिए, तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6, ये आपको हो जाएगा 5/6 अपॉन 5/6, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4, तभी तो 1 आएगा ना यहाँ पे, अगर π/4 रखोगे तभी तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज साइन, अब देखिए यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पे आप लगाइए कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस ए प्लस कॉस बी, कुछ भी आप बोलिए, है ना। फॉर्मूला आप लगा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। क्या है साइन सी माइनस साइन डी? क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी कितना हो जाएगा? 2 cos 4x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा। यहाँ से ये क्या, ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा मेरे पास? tan x, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए और भी सिंपल सवाल है, इसको आप लिख सकते हो cos 15 और इसको आप वैसे रहने दो cos 105। अब यहाँ पे वही cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा, तो क्या हो जाएगा? 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कि 60 इंटू cos दिस माइनस दिस बाई 2 यानी कि 45। फॉर्मूला ये आ गया, आंसर निकाल दिए। cos 60 कितना होता है? sin 30 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 45 होता है 1/√2, ये कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास क्या बचा? 1/√2, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन साइन ए। अब वही साइन रूल लगा देना है आपको, साइन रूल वाला फॉर्मूला है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे देखना है? a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b, ये लिखना है। a मेरे पास कितना है? 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू मुझे दे रखी है 2/3 इज इक्वल टू b मुझे दे रखा है 3 और ये दे रखा है साइन b। तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, साइन बी की वैल्यू कितनी बची है? 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है, हमेशा मैंने बहुत लोगों को देखा कि सीधे सीधे एक्स लिख देते हैं। अरे भैया एक्स तब होता है जब यहाँ पे एक्स जो होता है वो मेरा π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो, ये तभी हम इसको x ऐसे लिख सकते हैं, वरना बाकी सारी कंडीशंस बनती हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो x है यहाँ पे, ये वाला जो x है वो बेसिकली इसके इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है? ये आपका लाई कर रहा है π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि आपको कुछ वो याद करने ही होंगे, है ना, कुछ होते हैं आपके, वरना अगर किसी को याद नहीं है तो आप क्या करो, जब भी ये आपका होता है प्रिंसिपल रेंज, है ना, ये आपका होता है प्रिंसिपल रेंज। बाकी अगर आपको कोई और रेंज दी हुई हो, है ना, जो आपका ये होता है π/2 से लेकर 3π/2, अब देखिए क्या करिए ना, इसको आप इसको कोशिश करिए, इसको और इसको, मुझे इसको इसमें लाना है, मुझे इसको इसमें लाना है ना, क्या करिए, ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू प्रिंसिपल रेंज, ट्राई टू bring it into principal range, है ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू मुझे दी हुई है π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो आएगा मेरे पास -3/2 और यहाँ पे आएगा -π/2, है ना, दोनों साइन बदल गए और यहाँ पे इंटरचेंज कर गए। फिर यहाँ पे मैं पाई ऐड करूँगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -π/2 से लेकर π/2 ये आएगा। अब देखिए वही आ गया, प्रिंसिपल रेंज में आ गया मेरा, लेकिन प्रिंसिपल रेंज में आया, लेकिन बीच में क्या आ गया मेरे पास? π-x आया, तब जाके ये प्रिंसिपल रेंज में आया। तो मुझे इस x को सीधे x नहीं लिख देना है, मतलब 2π/3 नहीं लिख देना है, मुझे इसको लिखना है π-x, यानी कि π-2π/3, ये कितना हो जाएगा? π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो क्वेश्चन हमको दिया है x x माइनस वाई एक्स प्लस वाई अर्थ है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हैं तो इन तीनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए, इन तीनों का जो सम है वो 180 के बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ से ये कटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ एक्स इक्वल टू, तो 60 डिग्री। देखिए मुझे इस लाइन का ना कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिखाई दिया कि इसको ये क्यों दिया हुआ है, ये लाइन यहाँ पे क्यों दी हुई है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी हमसे एक्स पूछा हुआ था तो मैंने एक्स तो यहीं से निकाल दिया 60 डिग्री। तो आंसर तो π/3 आना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने अपनी आंसर की में इसको π/4 दे रखा है। मुझे पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है π/3 आ रही है, दैट इज 60 डिग्री, है ना। तो देख लीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हमसे बोल रहा है ABC इज अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो जैसे ही सर्कल इंस्क्राइब इन सर्कल आया तो क्या बना लो, एक सर्कल यहाँ से बनाओ, इसके अंदर एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब कर दो, है ना। एक ट्राइंगल को तुम यहाँ पे एक ऐसे इंस्क्राइब कर दो, ऐसे ये लेट अल्फ़ा। अब मैं यहाँ पे इसको नाम भी दे देता हूँ ABC। यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर O, यहाँ पे इसका सेंटर है O, है ना। चाहे मतलब इस ट्राइंगल का सेंटर को, चाहे सर्कल का तो सेंटर है ना। अब हमसे कह रहा है कि जो एंगल BAC है, ये वाला एंगल, वो अल्फ़ा है, और एंगल एंगल BAC, ये वाला जो एंगल है वो मुझे अल्फ़ा दे रखा है, ये मेरा ओरिजिन है O, और हमको दे रखा है एंगल BOC बीटा, यानी कि ये बीटा है। देन विच, देखिए हमको पता है कि ये हमारा कॉर्ड है BC, है ना। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्कल की, द एंगल सबटेंडेड बाई द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई द कॉर्ड एट एनी पॉइंट। यानी कि जो एंगल कॉर्ड सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, यानी कि बीटा, वो ट्वाइस हो जाएगा उस वाले एंगल के जो वही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड कर रहा है, जो कि है अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आएगा। तो बीच में देखिए, अब यहीं पे देखो ऑप्शन नंबर है, यहाँ पे तुरंत करेक्ट हो जाता है। बीटा को 2 अल्फा रखोगे तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुरंत करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। हमसे कह रहा है इफ अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज द शैडो। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे रखी, यहाँ पे है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक फ्लैग स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है। एक ऐसे जो है फ्लैग स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पे एक फ्लैग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सूर्य है ना, सूरज ज़्यादा है, ये चमक रहे हैं, और ये चमकते हुए इसकी शैडो कास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी शैडो बनेगी कुछ ऐसी, यहाँ पे इसकी शैडो मान लेते हैं, इसका जो टॉप वाला पोर्शन यहाँ पे आया, फिर ये बॉटम वाला पोर्शन यहाँ पे आया, है ना। ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पे जो इसकी शैडो ऐसे बन रही है, ऐसे ये कितने की दी हुई है, 2√3 मीटर की, 2√3 मीटर की हमको ये दी हुई है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये 6 मीटर की है ना, ये जो है मेरी 6 मीटर की है, और ये जो है ये एंगल थीटा बना रही है, ये वाला एंगल भी थीटा बना रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल दैट द सन मेक्स विद द ग्राउंड, यानी कि ये जो थीटा है हमको ये निकालना है, ठीक है। अगर ये 6 है, मैं सपोज इसको मान लेता हूँ कि ये जो टावर है, इसका जो हाइट है वो h दिया हुआ है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x, ठीक है, x मान लेता हूँ। तो एक बार क्या करते हैं, जो tan थीटा है वो यहाँ से कितना हो जाएगा, h/x, और यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, अगर मैं इस वाले लंबे वाले ट्रायंगल में देखूँ तो कितना हो जाएगा, h + 6/x + 2√3 हो जाएगा। अब ये दोनों की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, तो दोनों को बराबर कर दें, इक्वेट कर दें, तो कितना आ जाएगा, h/x की वैल्यू आ जाएगी आपकी h + 6/x + 2√3 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास आएगा hx + 2√3h इज इक्वल्स टू hx + 6x, hx से hx कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से tan थीटा की वैल्यू h/x है, मुझे चाहिए tan थीटा ही मुझे चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करिए कि आपके पास क्या बचा, 2√3h की वैल्यू आपके पास आई 6x, तो यहाँ से h/x कितना है आपके पास, 6/2√3, यानी कि 3/3√3। तो h/x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3, जो कि tan थीटा के बराबर है ना, यहाँ से। तो tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। ये और ये दिया हुआ है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, तो आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 17/20 अपॉन 17/20, ये कैंसिल आउट होके बना tan इनवर्स 1,
तो आपका हो जाएगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। A spherical balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. What is the height of the center of the balloon? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, ये है आपका ग्राउंड, ये है आपका बैलून, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ये इसका ऐसे रेडियस है ना, ये आपका रेडियस है ऐसे, और ये जो है अगर मैं यहाँ से इस पर टेंजेंट बनाऊँ ऐसे, ये यहाँ पे, और एक टेंजेंट यहाँ बनाओ ऐसे, ये एंगल सबटेंड कर रहा है ना। यहाँ मैं थोड़ा और खींच देता हूँ। ये वाला एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? अल्फा। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका अल्फा। अब नेक्स्ट देखिए, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। यहाँ से ये जो आ रहा है ऐसे, ये वाला डिस्टेंस और हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपका h हो गया सपोज, और ये h हमको निकालना है। अब ये वाला ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, सपोज ये मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट O है। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊँ ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? बीटा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एंगल है वो अल्फा/2 हो जाएगा, है ना। ये अल्फा/2 हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल अल्फा/2। CP/CT से सभी को पता है कि अल्फा/2 हो जाएगा, है ना। और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको पॉइंट देता हूँ O, इसको पॉइंट देता हूँ B, तो ट्राइंगल OPA में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो साइन अल्फा/2 है, साइन अल्फा/2 क्या हो जाएगा? साइन अल्फा/2 आपका हो जाएगा R अपॉन, है ना, R अपॉन OP। R अपॉन OP हो जाएगा। यही OP कितना आ जाएगा आपका? R अपॉन साइन अल्फा/2 ये आएगा। तो इसको नज़र में रखिएगा। दूसरा, ट्राइंगल O, अगर ट्राइंगल, इस बार इसको लिखिए ट्राइंगल OPB में, ट्राइंगल OPB में, या फिर ट्राइंगल OPB छोड़ के यहाँ पे रखो, ये भी यहाँ पे जाओ। तो ट्राइंगल OPB में क्या हो जाएगा? यदि मैं यहाँ से निकालूँ आपका साइन बीटा, साइन बीटा आपका हो जाएगा H अपॉन OP, है ना, ये हो जाएगा। और H हमको चाहिए, तो H की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी? साइन बीटा इंटू OP, और OP कितना दे रखा है मुझे? R अपॉन साइन अल्फा/2। तो मेरा H कितना हो जाएगा? साइन बीटा इंटू R अपॉन अल्फा/2, या फिर R इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा/2, है ना, R इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा/2, ये H की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, ठीक है ना। कंपोनेंटो डिविडेंडो तो लगाओगे तो आएगा आपके पास साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 2b। ये गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये आया। अपॉन नीचे आ जाएगा आपका साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? 2 साइन x कॉस y अपॉन आपके पास आएगा 2 कॉस x साइन y। तो क्या बचा आपके पास? ये कितना है आपके पास? ये आपके पास tan x अपॉन tan y। ये आपके पास आ गया a अपॉन b। तो tan x अपॉन tan y कितना आ गया मेरे पास? a अपॉन b। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन मेरे पास आ रही है कि एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू मैं इसको यहाँ से 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे दिखेगा कि साइन अल्फा की वैल्यू माइनस ऑफ साइन बीटा के बराबर है। तो यहाँ से मुझे मैं यहाँ से दो चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ। क्या? या तो अल्फा की वैल्यू पाई, अगर ये हमको दिया हुआ है तो या तो अल्फा की वैल्यू जो है
वो मेरा है पाई प्लस बीटा या तो 2 पाई माइनस बीटा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है मेरे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस ऑफ कॉस बीटा, ये आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो भी आपका पाई माइनस पाई प्लस बीटा हो जाएगा, या फिर आप अल्फ़ा को पाई माइनस बीटा भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको 2 पाई माइनस अल्फ़ा तो कतई नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 पाई माइनस बीटा तो वो कॉस बीटा के बराबर ही हो जाएगा। तो या तो पाई प्लस बीटा बोलो या तो पाई माइनस अल्फ़ा बोलो, चूँकि ये दोनों एक ही इक्वेशन है, एक ही को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा वही आएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस बीटा और अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस बीटा इन दोनों में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस बीटा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। हमको पता है कि कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास कॉस ए बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बाई 2 प्लस माइनस में इसका अंडर रूट आएगा। इफ़ वन वैल्यू ऑफ ए इज़ पॉसिबल, मतलब हमसे बोला कि ओनली वन वैल्यू ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, यानी कि इसका सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है। अब इसका एक वैल्यू पॉसिबल होने के लिए, इसका यदि एक वैल्यू पॉसिबल होना है तो मुझे इसको जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक वैल्यू आती है तो उसकी प्लस माइनस बाहर पहले से पड़ी हुई है तो उसकी दो वैल्यू आएगी। लेकिन चूंकि एक वैल्यू बताना है तो उसकी मुझे इसका जो है मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसके अंदर वाले टर्म को ज़ीरो करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कॉस ए को रखना पड़ेगा -1, कॉस ए को रखना पड़ेगा -1। और ये तब होगा कब, जब या तो पाई आए, या तो 3 पाई आए, या तो पाई आए 1 इंटू पाई, या तो 3 पाई आए यानी कि 3 इंटू पाई, या फिर 5 इंटू पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमको दिया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, वेयर 0 इज लेस देन मतलब अल्फा की जो वैल्यू है 0 से लेकर पाई बाय 2 में इंक्लूड करिए। अच्छा, ये 0 कब होगा, ये 0 तभी होगा जब या तो -1 1 0 ऐसा कुछ रहे, या फिर 0 0 0 रहे, या फिर 1 -1 0 ऐसा कुछ रहे। लेकिन -1 ले नहीं सकते, है ना, तो ये दोनों केसेस तो गए। -1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि -1 को पाने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू को 3 पाई बाय 2 रखना पड़ेगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू सिर्फ 0 से लेकर पाई बाय 2 है। तो ये वाला केस तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों की तीनों वैल्यू 0 होंगी, और तीनों की तीनों वैल्यू 0 होने के लिए मेरे को अल्फा बीटा और गामा तीनों की तीनों पाई बाय 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, यानी कि 1 + 1 + 1। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा इसका, 3। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस x की वैल्यू पे अटेन हो रही है, ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी मैं अभी बता दूं कि √2 है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है। हमसे पूछा कि √2 तो ठीक है, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन √2 x की किस वैल्यू पे आएगी, √2 जो है वो x की किस वैल्यू पे आएगी वो बोल रहा है। तो निकाल देते हैं √2, है ना। यहाँ से मैंने √2 बाहर निकाला तो मेरे पास बनेगा 1/√2 साइन x प्लस पाई बाई 5 प्लस 1/√2 कॉस x प्लस पाई बाई 5, ये बचा। तो आएगा √2 इंटू, ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो साइन या फिर कॉस लिख दो, कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 5 प्लस इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस x प्लस पाई बाई 5 √2। ये आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 4, है ना, साइन a प्लस बी, है ना। अगर मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो आएगा साइन a प्लस बी, ये आ जाएगा। अब मुझे चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, √2 हो सकती है। अब √2 यहाँ पहले से है तो इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, यानी कि जो साइन x प्लस 9 पाई बाई 20 है उसको मुझे 1 लाना पड़ेगा। 1 लाने के लिए इसको पाई बाई 2 होना पड़ेगा, इसको पाई बाई 2 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, तो पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 20, तो आएगा आपके पास कितना, पाई बाई 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 51, what is the distance between the points which divide the line segment joining 4,5 internally and externally in the ratio 2:3। मतलब ओवरव्यू समझिए इसका क्या कहना चाह रहे हैं, इसको रफ में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक लाइन है ना, और
एक 4,3 एक पॉइंट दे रखा है और एक 5,7 एक पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक पॉइंट आपका पॉइंट ए यहाँ कहीं होगा और एक पॉइंट आपका बी यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट ए जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है और ये वाला पॉइंट जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। तो हमको एक पॉइंट ए ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बी ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मांग रहा है, डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है। बस तो आइए रफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट मुझे क्या दिया हुआ था 4,3 और दूसरा दिया हुआ था 5,7 है ना, 4,3 और 5,7। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इंटरनली की, है ना। इंटरनली बात करते हैं। किस रेशियो में हमसे बोला कि 2:3, यानी कि m1/m2 की वैल्यू जो है 2/3 दे रखी है, ठीक है। अच्छा, तो हमको सपोज पॉइंट ए हमको निकालना है, तो मैंने उसका कोऑर्डिनेट माना x, y। तो x को मैं क्या रखूँगा, x को रखूँगा m1 x2, है ना। m1 हो गया 2, x2 हो जाएगा 5 प्लस m2 हो जाएगा 3 और x1 हो जाएगा 4/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 + 12, 10 + 12 यानी कि 22/5। y कोऑर्डिनेट सिमिलरली आएगा m1 × 7 प्लस m2 × 3/5, तो आएगा 14 + 9/5। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 23/5। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ गया, ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नली, ये वाला। एक्सटर्नली का वही होता है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। एक्सटर्नली का सपोज यहाँ पे मैं x, y मानता हूँ, तो यहाँ एक्सटर्नली का x कितना आ जाएगा m1 y2 सॉरी m1 x2 m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो जाएगा, हाँ ना। कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 - 12 यानी कि आ जाएगा 2। और y कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आपका m1 y2 माइनस m2 y1 आएगा 14 माइनस 9 यानी कि 1। 14 माइनस 9 5/5 यानी कि m1 माइनस m2 आएगा ना, ये आपका -1 आएगा। तो आपका आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9, 14 माइनस 9 यानी कि 5 और ये आएगा -5, तो 2, -5। बस अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22/5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 23/5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आपका 12/5 का होल स्क्वायर प्लस 23 प्लस 25 48/5 का होल स्क्वायर, ये आएगा कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। तो आपके पास आ जाएगा √25, ये आएगा 144 और ये कितना आ जाएगा 48 का होल स्क्वायर कितना होता है 2304, है ना। इसको आप करके देखिएगा तो 2304 आएगा। फिर एक फर्दर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2448/25। तो ये तो बाहर निकला, यहाँ अंडर रूट क्या बचेगा, ये अगर आप 2448 को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लिखूँ तो ये कुछ ऐसे लिखाएगा 144 × 17। तो ऊपर से क्या बाहर निकला 12 और अंडर रूट में क्या रह गया 17। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 12√17/5, 12√17/5। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस वेयर m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। ये व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। अब जो कि हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस आ चुकी हैं, तो पहली स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये आपका हो जाएगा mn + n² अपॉन m² - mn, ये हो जाएगा।
सिमिलरली m2 कितना हो जाएगा, अगर मैं इस लाइन की स्लोप की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा mn माइनस एन स्क्वायर अपॉन mn प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब हमके इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा। तो इसको रफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमसे कह रहा है कि जो पहली लाइन का स्लोप है मुझे कितना दे रखा था, mn प्लस एन स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस mn, और दूसरी लाइन का जो स्लोप दे रखा था, ये स्लोप है ना, स्लोप m1 है स्लोप और m2 है स्लोप, तो इसका स्लोप कितना दे रखा था मुझे, mn माइनस एन स्क्वायर अपॉन mn प्लस m स्क्वायर। अब tan थीटा का फॉर्मूला हम सभी को पता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आएगा। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ mn प्लस एन स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस mn माइनस ऑफ mn माइनस एन स्क्वायर अपॉन mn प्लस m स्क्वायर, ये आएगा अपॉन 1 प्लस mn प्लस एन स्क्वायर इंटू mn माइनस एन स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस mn इंटू m स्क्वायर प्लस mn। tan थीटा कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ, ये आपका आ जाएगा mn का होल स्क्वायर प्लस m क्यूब n प्लस n क्यूब m प्लस mn का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये आपका आ जाएगा m क्यूब n माइनस mn का होल स्क्वायर प्लस माइनस mn का होल स्क्वायर प्लस mn क्यूब। तो यहाँ से ये वाला प्लस mn क्यूब और माइनस mn क्यूब और प्लस m क्यूब n माइनस m क्यूब n कैंसल आउट हो जाएगा, mn स्क्वायर mn का होल स्क्वायर प्लस mn का होल स्क्वायर प्लस mn का होल स्क्वायर प्लस mn का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4mn स्क्वायर ऊपर, और नीचे जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका m स्क्वायर माइनस mn इंटू mn प्लस m स्क्वायर। अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस mn का होल स्क्वायर माइनस n की पावर 4 अपॉन यहाँ बनेगा m की पावर 4 माइनस mn का होल स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बन रही है, m की पावर 4 माइनस mn का होल स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ बचेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 टाइम्स mn का होल स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 माइनस mn का होल स्क्वायर प्लस mn का होल स्क्वायर माइनस n की पावर 4, ये गया। तो यहाँ से आपके पास आया tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ 4 m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 माइनस n की पावर 4। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4 m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स 4 m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन m टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the equation of the straight line cutting off an intercept 2 from the negative direction? इसको मैं erase कर देता हूँ। Equation of the straight line cutting off an intercept of 2 from negative direction of y axis and is inclined at 30 degree। मतलब ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन वाई, यानी कि लाइन एक ऐसे आ रही है जो कि यहाँ पे 2 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रही है, यानी कि लेंथ 2 है, यानी कि कोऑर्डिनेट है 0, -2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में ये लाइन 30 डिग्री पे बना रही है। तो मेरे को पॉइंट मिल गया, मेरे को मिल गया 0, -2 और मेरे पास स्लोप कितना आ गया tan 30, यानी कि 1/√3। तो y + 2 इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू x, ये मेरा आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये
x minus root 3y minus 2 root 3 equal to 0, option number D. Next question. What is the equation of the line passing through the point of intersection of the lines? तो पहले इन दोनों का point of intersection निकाल देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आएगा 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 11 इक्वल टू 0 है ना, ये आएगा। तो आपके पास y कितना आ जाएगा 11/5, आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11/5। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10x प्लस 25 इक्वल टू 11, x की वैल्यू आ जाएगी -14/10 यानी कि -7/5, x की वैल्यू आ जाएगी -7/5। तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट क्या आ गया मेरे पास -7/5 11/5, और इसके पैरेलल है, इसके चूंकि पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा -1/1 यानी कि 1, यानी कि इसका चूंकि इस लाइन का स्लोप 1 है तो इस लाइन का भी स्लोप 1 होगा। ये स्लोप आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास पॉइंट्स, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 ये होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5y माइनस 11 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5x प्लस 7। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है। इन तीनों ही क्वेश्चन में हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, हमसे कह रहा है लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c सेटिस्फाइज द रिलेशन। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या करना होता है, हमें ओरिजिन को इसमें रखना होता है। तो मेरे पास आएगा 0, मतलब यहाँ पे अगर रखोगे, अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूँ तो लिखूँगा ax प्लस by माइनस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे यहाँ पे 0 रखोगे तो बचेगा -c/√a² प्लस b²। वैसे तो इसका मोड ले लेते हैं, ये आपका p हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा c² प्लस b²। वही मेरा आ गया, स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। फिर यहाँ से हमसे दूसरे में पूछा लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, फिर वही करना है काम, यहाँ पे ओरिजिन रख देना है, ओरिजिन रखोगे यहाँ पे तो यहाँ ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आएगा √1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू p। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो p² इज इक्वल टू 1/1/a² प्लस 1/b², यानी कि यहाँ से आ रहा है 1/p² की वैल्यू आ रही है 1/a² प्लस 1/b², ऑप्शन नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 2। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं, द लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c सेटिस्फाइज द रिलेशन। तो ये अगर मैं यहाँ पे फिर से ओरिजिन रख दूँ तो यहाँ पे मेरे को बचेगा ऊपर c आएगा और यहाँ पे आ जाएगा √m² प्लस 1 इज इक्वल टू p। तो p² की वैल्यू आ जाएगी c²/m² प्लस 1, तो 1/p² कितना आ जाएगा m² प्लस 1/c², ये आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे को एक्स्ट्रा c² वाला टर्म दे रखा है तो ये तो गलत हो जाएगा, और स्टेटमेंट नंबर 3 ऑलरेडी रॉन्ग है, तो मेरा इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो 1 और 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, What is the equation of the ellipse whose vertices are +-5, 0 and foci are? बहुत ही सिंपल सवाल है, और पहली बात तो ये आपका एलिप्स जो है ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है कि इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स यहाँ पे होंगे, ये आपके 5, 0 और यहाँ से आपके -5, 0। तो यहाँ से मुझे पता है कि वर्टेक्स जो कोऑर्डिनेट होता है, अगर हम नॉर्मल वाले लैंग्वेज में चले तो ये बेसिकली a लिखा हुआ है, स्मॉल a, और यहाँ पे फोकाई की वैल्यू होती है ae की वैल्यू हमको दे रखी है 4, a की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी है 5, तो 5e इज इक्वल टू 4, तो e की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/5। अब हमको एक फॉर्मूला और पता है कि b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - c², तो b² हमको चाहिए, a² हमको दे रखा है 25 और a² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 25, ये और यहाँ पे 1 - e² यानी कि 16/25, 25 से 25 गया तो b² की वैल्यू आ जाएगी 9, a² की वैल्यू आ जाएगी 25। तो हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो इसी फॉर्म में हो जाएगा, है ना, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। Equation of a straight line passing through this point and making an intercept of the on the positive y-axis equal to twice its intercept on the positive x-axis। कहने का मतलब ये देखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बस आसान क्वेश्चन है बहुत ही। अगर हमसे कह रहा है अगर x एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट बना है a, 0 तो उसका ट्वाइस इंटरसेप्ट y एक्सिस पे बना है, यानी कि लाइन कुछ आपकी ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा आपका आएगा 0, 2 है ना, सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट बना हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट से कहीं से पास कर रहा है 2, 3। अगर मैं इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए इसका स्लोप निकालूँ तो कितना आएगा -2a/a आएगा,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आपका आ जाएगा -2। स्लोप -2 आ गया, मेरे को पॉइंट भी पता है, इक्वेशन निकाल देंगे, कितना आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। Let the coordinates of the points A, B, C be this. What are the coordinates of the point D, which is the foot of the perpendicular from A on BC? यानी कि पॉइंट A है मेरा, कितना दे रखा है 1, 8, 4, और यहाँ पे इस लाइन पे, इस ये जो लाइन है मेरे पास BC है ना, ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -11, 4, और ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 2, -3, 1। अब यहाँ पे एक पॉइंट D है जिसका मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो A, B, C, मान लिया। अब देखो, अब इस लाइन का DR निकालो। इस लाइन का DR कितना हो जाएगा मेरे पास A माइनस 1, यहाँ पे A माइनस 1, B माइनस 8, C माइनस 4, ये हो जाएगा आपका DR, डायरेक्शन रेशियोज, DR ऑफ AD। फिर इसका DR कितना हो जाएगा, इसका DR आपके पास हो जाएगा 2 और 8 और 2, 8 और -3, 2, 8 और -3। चूँकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना, ये दोनों आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के नाते इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको 0 कर दो, यानी कि 2a -2 प्लस 8b -64 -3c प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 8b -3c, ये आपका हो जाएगा -68 प्लस 12 इज इक्वल टू 56। तो पहला इक्वेशन, एक तो इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। अब देखिए, अब जब मैं कहता हूँ कि मैं अब ये जो BC लाइन है, ना, इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा। इसका जो है मैं क्या लिख दूंगा, इक्वेशन लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, x माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 11 अपॉन 8 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -3। इसको मैं बोल देता हूँ k। जैसे ही मैंने इसको बोला k, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2k, x की वैल्यू मैं 2k लिख सकता हूँ, y की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 8k माइनस 11, और z की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -3k प्लस 4। अभी जो x y z है ना, ये इस लाइन पे कोई भी एक कॉमन पॉइंट है। चूँकि ये कॉमन पॉइंट मेरा a, b, c भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे x को a से रिप्लेस कर देता हूँ। a की वैल्यू 2k है, b की वैल्यू आपकी है 8k माइनस 11, सॉरी b की वैल्यू है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है आपकी -3k प्लस 4। अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को आप उठा के वहाँ पटक दो, जो आपने यहाँ पे रखी थी। ये जो अपनी इक्वेशन यहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज उठा के रख देंगे, ठीक है। तो मुझे क्या क्या रखना है, ए को रखना है 2k, बी को रखना है 8k माइनस 11, और सी को रखना है -3k प्लस 4, ठीक है, 3k प्लस 4। सी को रखना है क्या, -3k प्लस 4, ए को रखना है 4k, और बी को रखना है 8k माइनस 11, ये रखना है ना। हाँ ठीक है, 2k 8k माइनस 11, सॉरी ये 2k होगा, सॉरी 2k। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, 4k प्लस 64k माइनस 88 प्लस 9k माइनस 12 इक्वल टू 56, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकाले तो ये 68 के हो जाएगा, ये 13 68 प्लस 9 75 के हो जाएगा, ठीक है। 75 के 13 सॉरी 64 69 प्लस 9 78 के यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू 156। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से निकाल दीजिए पॉइंट कितना हो जाएगा, k की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई तो यहाँ पे आप रख दीजिए और यहाँ पे पॉइंट निकाल दीजिए। यहाँ पे आएगा a की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो 4, 5, -2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो 59th क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब भी हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना होता है जो कि 3 पॉइंट से पास कर रहा होता है ना, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इसको मैं बोलता हूँ x1,
इसको मैं बोलता हूँ y1, इसको बोलता हूँ z1, इसको बोलता हूँ x2, इसको बोलता हूँ y2, इसको बोलता हूँ z2, इसको बोलता हूँ x3, इसको बोलता हूँ y3, इसको बोलता हूँ z3। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। फिर यहाँ पे होता है y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। यहाँ पे होता है z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1, है ना। जब भी आपको किसी भी इक्वेशन में डायरेक्टली पूछ लिया करे कि प्लेन का इक्वेशन निकालो जहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हो, तो बस यही डिटरमिनेंट के वैल्यू लगा देना। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं तो आएगा x माइनस x प्लस 2, फिर यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे आपके पास -1 आएगा, फिर यहाँ पे x3 माइनस x1 आएगा यानी कि -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा y माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आपके पास कितना आएगा -6, यहाँ पे आपके पास आएगा z माइनस या z प्लस 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा z2 माइनस z1 यानी कि -3 आएगा। फिर यहाँ पे आएगा z3 माइनस z1 यानी कि 0 ये आएगा। फिर इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा ये x प्लस 2 इंटू -3 प्लस 6 माइनस y इंटू -9 प्लस z प्लस 6 इंटू 13। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -3x सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी जस्ट लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे -6 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका -6 आएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी क्या दिक्कत होगी, x प्लस 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना +18 आएगा ना, सॉरी हाँ, प्लस x प्लस 2 इंटू +18 या फिर कह दो -18, फिर यहाँ पे प्लस इंटू यहाँ पे तो सही है z प्लस 6 इंटू या क्या हो जाएगा 6 प्लस 12, ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 18। तो यानी कि -18x -36 -54 प्लस 9y प्लस 18z प्लस 108 इज इक्वल टू 0। सारा के सबको 9 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा -2x -4 -6 प्लस y प्लस 2z प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना 2x माइनस y, है ना। यहाँ से देखोगे तो 2x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू -10 प्लस 12 प्लस 2, तो प्लस 2 ही तो आएगा, तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा 2x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, लास्ट वाला क्वेश्चन इस सेशन का। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको हम नीचे रफ में सॉल्व करते हैं। हमसे बोला कि स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस स्मॉल आर थ्रू द ओरिजिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी सी, व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिएगा हमसे कह रहा है कि एक स्फीयर है, ये ऐसा एक स्फीयर है, ये जो है मेरा स्फीयर ये ओरिजिन से पास कर रहा है, प्लस इसने ना ये अगर मैं मानूँ ऐसे तो ये ऐसे एक ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जैसे कि मान लेते हैं पॉइंट ए पे ऐसे इसको इंटरसेक्ट किया है ना, ए बी सी पे जो है इसने इंटरसेक्ट किया, तो आपका हो जाएगा a, 0, फिर यहाँ पे आपका b हो जाएगा 0, b, 0 और यहाँ पे आपका जो c हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0, 0, c, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि जो है मैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर को सपोज मान लेता हूँ, क्या मानूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, सभी को पता होता है ना। अब देखिए प्लस हाँ ठीक है, ये हुआ। अब हम कह रहे हैं कि सपोज इसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड जो है इसका जिसको हमको लोकस निकालना है उसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करे तो उसको सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा d इज इक्वल टू 0, है ना।
अगर ये पॉइंट ए से पास करे तो इस पॉइंट ए को यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2u a इक्वल टू 2u a इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मिलेगा a प्लस 2u इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू आपके पास आएगी -2u। ठीक है, फॉर वही सेम चीज़ b और c के लिए भी आएगा। b की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, -2v, और c की वैल्यू कितनी आएगी -2w, है ना, यही सेम चीज़ आएगा। अच्छा, इक्वेशन जो मेरे पास क्या बन जाती है, तो वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2u की वैल्यू कितनी है -a, तो यानी कि -ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, ये बनेगी। अब रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होता है, रेडियस अगर हम इसके तौर पे निकालें तो रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, √a कहने का मतलब है कि रेडियस अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, है ना, यही तो होगा। अब d की वैल्यू यहाँ 0 दे रखी है, r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a/2 आएगी, तो आपके पास आ जाएगी a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 4, ये आएगी। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आएगा r स्क्वायर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गया। हमको पता है कि भाई ये सेंट्रॉइड और ट्रायंगल जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए जैसे ये था ना, हमने पे कैपिटल ए को लिया था a,0,0, कैपिटल बी को लिया था मैंने 0,b,0, और सी कैपिटल सी को मैंने लिया था 0,0, स्मॉल सी, ये लिया था। अब सेंट्रॉइड और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम उसका अल्फ़ा निकालें यहाँ से, जो हमने अल्फ़ा लिया था, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a/3, सिमिलरली बीटा कितना हो जाएगा आपका b/3, और यहाँ पे आपका जो गामा हो जाएगा, गामा कितना हो जाएगा आपका c/3, ठीक है। तो यदि हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर बाई 9 प्लस b स्क्वायर बाई 9 प्लस c स्क्वायर बाई 9, 9 को इधर ले जाएंगे तो आएगा 9 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 4r स्क्वायर, बस आ गया। अब बस अंतिम में क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा को x, y, z से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। फाइनल जो हमारा आंसर आया वो ये है, ठीक है, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कम्प्लीटली जो है इसको मैच करता हो, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। कम्युनिटी टैब पे हमने 5 और क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करते रहिए, उसको छोड़िए मत, है ना, उसको छोड़िए मत, क्योंकि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देगा। थोड़े मतलब टफ उतने ज़्यादा भी नहीं है, ना ही उतने ज़्यादा ईजी है, मीडियम लेवल के हैं, तो उसको करते रहिए और अपने प्रिपरेशन करते रहिए। 1 महीना बचा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो अच्छे से उसको हर चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करिए, पेपर देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, और जिसका भी सॉल्यूशन ना समझ में आए तो उसको यूट्यूब से रेफ़र कर लीजिए हमारे चैनल से, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।